Okay, so in last lecture we have discussed this gamma function. Gamma of n is equal to 0 to infinity e raised to minus t raised to some power dt. So this gamma function or this gamma integral actually contain two terms. One is exponential and second is x raised to some power. Then how to calculate this gamma of n? There are these three definitions that you need to remember. So this gamma function you can calculate, okay, only for these three types of values, okay. And for the remaining values you have to keep that gamma function as it is. For example, gamma of 1 by 4 you cannot calculate manually, okay. And then after that, depending on the types, okay, we have actually differentiated this we have differentiated the examples of gamma function, okay. So the first definition is what, first type is what, the examples on definition, or simply you can remember this type using this definition, okay. Integration 0 to infinity and exponential term. If in that given integral, if your limits are from 0 to infinity and if it contains the exponential term, then you have to solve that example using gamma function. This is your type 1. Type 2 is what? Type 2 is of this type, again integration from 0 to infinity, x raised to some power and a raised to some x, okay, constant raised to variable. In that case also you can solve that example using gamma function. You just need to change this second term, as this first term is very much similar to x raised to some power, so we need to change this second term. So just change this second term to exponential term, it is e raised to minus t, and you will get that answer, okay. So in this case also you can solve that example using gamma function. Third identification is what? Constant raised to constant multiplied by variable raised to some power, okay. You can remember like this, constant raised to variable, simply constant raised to variable, okay. So in this case also you can directly replace this term by e raised to minus t and you can solve this integral by using gamma function, but provided in all these first three types your limits of your integration must be from 0 to infinity. आप तीनों केसेस में देखो, यहाँ पे लिमिट जो जा रहा है इंटीग्रेशन का वो 0 to infinity जा रहा है. If it is not if your limits are from 0 to 1, then you need to change that method. You can't solve that example by using gamma function, ठीक है. तो ये भी एक सिमिलरिटी है, तीनों में 0 to infinity आपका लिमिट जा रहा है, ओके. So now this is all about the first three types, I guess. And now let us. सर yes, बोलो. सर एडमिट करना था. ठीक है. Now we are at last type, okay. Just a 1 minute, let me check where it is here. And our last type is examples containing logarithmic function, okay. ठीक है. Okay, so I hope this screen is visible to everyone. Yeah. So now the fourth type, type number 4, examples containing logarithmic function, okay. Examples containing logarithmic function, ठीक है. Let me admit, yeah, okay. So अभी इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, okay. If that integral contain the log x term, okay, then you have to solve that example using gamma function, but still I will give that demand, okay. Just a minute. ठीक है. So for example, if that given integral is of this type, okay, मैं डायरेक्टली दे ही देता हूँ. I will not write the limits, ठीक है. It depend on the given function, but in most of the cases these limits are from 0 to 1, okay. Why? Because log, okay, in most of the cases these limits are from 0 to 1 and log of x. Remaining function, okay, remaining terms are also there, is of this type, into some function dx, okay. Yeah, simply I can write log x, समझ में आ जाएगा, ठीक है. Yeah. So now again my same question is there, how you convert this integral into a beta function, okay. What is our beta function? So let me give that definition also. Okay, what is the integral? Integral of gamma function. Sorry, what is the integral of gamma function? Can anyone tell me the definition again? 0 to infinity
e raised to minus 2. e raised to e raised to minus t into t to some the power power n. dt, and that you can write it as gamma of n plus 1. ओके, अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इस टाइप में जनरली क्या होता है कि इंटीग्रल में log का फंक्शन आता है, एंड इन दैट केस योर लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1 इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ओके, हाँ, सो इट मे बी ऑफ दिस टाइप और इट मे बी ऑफ दिस टाइप, because I can go with this also, I can go with log of 1 upon x also. It is similar to that, because log 1 upon x can be written as Minus 1. minus log x. So both are similar. Okay, both are similar. Okay, yeah. Now tell me how you convert this integral into this gamma function, into this gamma function. Can anyone tell me Log the x. substitution? Log x is 1 minus log x is equal to 2 t. Log x is equal to T. Minus t. very Minus good, t. very good, very good, very good. Okay, so you are almost correct, because at the end I want e raised to minus t term, okay, in that integral. So here I have to put a log x equal to minus t. Very good observation. And that gives me x is equal to, if I take antilog on both sides, I hope you all are aware about this. So if I take antilog on both sides, that gives me e raised to minus t. Now let us check, okay, dx is trivial, minus e raised to minus t dt. Now I will tell you why I have to consider these limits are from 0 to 1 only. ठीक है, you can check from this limits, this table. ठीक है, here in this case the limits of x are from 0 to 1. Okay, now to convert this integral, just let me, just 1 minute, let me add. Okay, now to convert this integral इनटू गामा फंक्शन, ये ऑलरेडी 0 to 1 का लिमिट है, आपको इसको 0 to इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है. तो 0 to 1 का लिमिट आपको समझ में आएगा कि कैसे ये 0 to इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो रहा है. सो फॉर दैट इफ x इज इक्वल टू 0, व्हाट इज t? Infinity. Can anyone tell me what is the value of log 0? Infinity. Exact value. Exact value. You are correct, but not the exact answer. ग्राफ से बोलो मुझे. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू? इट इज इन्फिनिटी, बट इज इट प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी? आप ग्राफ देखो और समझ में आएगा आपको व्हाई हाउ टू कंसीडर दिस माइनस इन्फिनिटी. ओके, सो दैट सी अभी ये इन्फिनिटी है तो आप बोलोगे सर माइनस और प्लस से क्या इफेक्ट होगा. सी वैल्यू में कुछ इफेक्ट नहीं होगा, बट एट द एंड दैट गिव्स यू डायरेक्शन कि कहाँ पे वो इन्फिनिटी को जा रहा है. ओके, वेदर इट टेंड्स टू इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन और इन अ नेगेटिव डायरेक्शन. सो दैट यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस साइन. सो log 0 is actually minus infinity. This is the exact value. And so if I put x is equal to 0 here, log 0 become minus infinity, minus t equal to minus infinity. That gives me t equal to infinity. And what happen if I put x equal to 1? log 1 क्या होता है? 0. log 1 is 0. Okay, now you will check this. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिमिट्स आप अभी आपको एट द एंड 0 to इन्फिनिटी चाहिए, तो आपको इन्फिनिटी टू 0 आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, एक रिजल्ट होता है इंटीग्रेशन में. ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और से सॉरी पहले ही माइनस क्यों ले रहा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स. दिस कैन बी रिटन एज, इफ आई वांट टू चेंज दिस लिमिट्स, अगर मुझे ये लिमिट चेंज करने तो मुझे क्या करना पड़ता है, साइन चेंज करना पड़ता है. सो हाँ, सो b टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स. आई थिंक ये भी आपने कहीं पे इंटीग्रेशन में देखा है. ठीक है, तो वही लॉजिक है इसमें. अब ये dx में माइनस साइन ऑलरेडी आने वाला है, dx रिप्लेस होगा माइनस ई रेज टू माइनस टी dt से, तो वो माइनस साइन ऑलरेडी आपके पास आने वाला है. तो यूजिंग दिस माइनस साइन यू कैन चेंज दिस लिमिट्स. ओके, 0 to इन्फिनिटी में वो कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ, सो डायरेक्टली उस टाइम पे देख लेते हैं. दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट केस व्हेन योर इंटीग्रेशन कंटेन log x टर्म. व्हाट हैपन इफ वी हैव एग्जांपल व्हिच कंटेन log of 1 upon x टर्म. अभी आपका ऑब्वियस आंसर होगा कि सर इसको माइनस log x में कन्वर्ट करो, फिर लॉजिक सेम लॉजिक से सॉल्व करो. ओके, वैसे भी आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं, या आप डायरेक्टली इसको टी पुट कर सकते हो. आप इसको चेंज करके माइनस log x में कन्वर्ट करके भी आप ये सेम चीज़ें फॉलो कर सकते हो, या सिंपली डायरेक्टली आप इसको भी टी पुट कर सकते हो. वाई? बिकॉज इफ log 1 upon x इज इक्वल टू टी, दैट गिव्स मी 1 upon x इज इक्वल टू e रेज टू टी, एंड दैट गिव्स मी x इज इक्वल टू e रेज टू माइनस टी. तो ऐसे भी भाई ये सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, सो कैसे भी मतलब यू कैन गो विद दिस आल्सो, यू कैन गो विद दिस आल्सो, इट डिपेंड ऑन यू. ओके, नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स डायरेक्टली.
एग्जाम्पल 1, इवैल्यूएट, आपको इतना ही आने वाला एग्जाम में, तो आपको मेथड डिसाइड करनी है. सो इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x log x raised to 4 dx. This is your question. Okay, x log x raised to 4. Okay, so let me just give you this solution. So in solution, okay, so why we have to use here gamma function. पहले तो ये क्वेश्चन आपको खुद को पूछना है कि gamma function से क्यों करना है, because this integral contain log x term. Okay, so if it contain log x term, let me just simplify this first. So this can be written as x raised to 4 into log x raised to 4 into log x raised to 4. Now since this integration contain log x term, now to convert this into a gamma function, we need to put log x is equal to minus t. So this gives me x is equal to e raised to minus t. This gives me dx is equal to minus e raised to minus t. And if I check the limits, here the limits of x are from 0 to 1, and if I calculate it for t, so when x is 0, t is minus t is equal to minus infinity, that gives me plus infinity, and when x is equal to 1, that gives me 0. Okay, so now you can write this given integral. So my given integral is equal to integration from, बोलो ये इसको चेंज करना है. हाँ, what are the new limits? Infinity to 0. हाँ, सीक्वेंस ये infinity to 0 दे रहा है, आप देखो यहाँ पे. And now x raised to 4, what is value of x raised to 4? इसमें दो रिजल्ट में आपको देने वाला, ठीक है. हाँ, बोलो x raised to 4 की वैल्यू क्या है? E raised to minus 4t. वेरी गुड, e raised to minus 4t. log x को तो पुट ही किया है, माइनस टी पुट किया है, तो माइनस टी raised to 4 गिव्स मी t raised to 4. माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड dx इज एक्चुअली माइनस, ओके यहाँ पे dt रह गया ना, सो माइनस e raised to minus t dt. नाउ तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ आगे. नाउ आई विल एडजस्ट दिस माइनस साइन इन द लिमिट्स ऑफ दिस इंटीग्रल. सो दिस कैन बी रिटन एज, so this given integral, this can be written as, now I can write the limits from 0 to infinity. Okay, because I have adjusted this minus sign here in the limits. And now yes, what is the final power of e raised to minus t? 5 minus 5t. ठीक है, and this t raised to 4 dt. Now tell me whether this is your gamma function. Is this your gamma function? नो, अभी भी आपका गामा फंक्शन है, क्योंकि गामा फंक्शन में क्या रिक्वायरमेंट है, e raised to minus t का आइटम चाहिए. यहाँ पे 5t आ रहा है, तो फिर क्या करोगे आप, अभी भी ये गामा फंक्शन में नहीं कन्वर्ट हो रहा है. 5t को ऑब्वियसली कुछ t, हाँ यस क्या था, 5t को सर और कुछ तो अलग पुट करेंगे. सो अगेन वी नीड टू पुट दिस 5t बाय सम अदर वेरिएबल. ठीक है, सो पुट दिस 5t, लेट मी टेक नाउ u. ठीक है, सो अभी ये e raised to minus u दिखाई देगा, एंड दैट इज सिमिलर टू योर गामा फंक्शन, एंड दैट गिव्स मी t इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है यही लॉजिक है, जैसे आप सब्स्टिट्यूशन लेते हो उसके बाद इमीडिएटली x कैलकुलेट करना है, फिर dx आता है. डोंट मिस दिस स्टेप्स, नहीं तो फिर वो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा. देन u by 5, दैट गिव्स मी dt इज इक्वल टू du by 5, एंड इफ आई चेक द लिमिट्स, जो t के लिमिट्स थे वो थे 0 to infinity, and if I convert this integral into u, those limits will remain the same. It is again from 0 to infinity. Now I can again write this given integral. So this given integral is equal to integration from 0 to infinity. Now this I can write it as e raised to minus u. Yes, what is the value of t raised to 4? u upon 5 raised to 4. Very good, u raised to 4 upon this 5 raised to 4, and this dt can be written as du upon क्या है वो 5. Okay, हाँ. Now the final answer is this I can write it as 1 upon 5 raised to 5. Let me keep this as it is. Integration from 0 to infinity e raised to minus u raised to 4 du. So your final answer is what? Gamma of, बोलो, gamma of what? 5 upon 5 raised to 5. अभी आप देखो,
ठीक है, तो आप दिस इज योर फाइनल आंसर एंड आई थिंक दिस गिव्स यू 4 फैक्टोरियल अपॉन 5^5। ठीक है, अभी इसके आगे मैं आपको एक फॉर्मूला ही दे रहा हूँ, मतलब ऐसे जो केसेस है ना e⁻⁻ के उसका एक फॉर्मूला ड्राफ्ट कर लेते हैं ना, तो इट सेव्स योर टाइम इन MCQs। ओके, बोल्ड में आपको फॉर्मूला शीट में भी ऐड करके देने वाला हूँ। ओके, सो नाउ यू टेल मी, जस्ट ऑब्जर्व दिस एग्जांपल केयरफुली एंड नाउ लेट मी राइट हियर ऑन टॉप, ओके, इन दिस ब्लू स्ट्रिप। नाउ यू टेल मी द फॉर्मूला फॉर दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity। इज दिस विजिबल? ये विजिबल है ना? Yes, sir. e⁻⁵ut, सॉरी 5ut नहीं, मुझे जनरल जाना है ना, लेट मी टेक हियर k। अभी अगर यहाँ पे क्या आता है e⁻kt t⁻⁻ dt, कैन यू टेल मी डायरेक्ट रिजल्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला? कंपेयर करो अच्छे से और मुझे बोलो क्या मेरा फॉर्मूला क्रिएट होगा यहाँ पे। गैमा ऑफ व्हाट? Gamma of K. गैमा ऑफ k अपॉन k⁻k। या आने वाला या क्या आने वाला है? k+1. K, sir. या आने वाला या क्या आने वाला है? Gamma of k+1 upon या gamma आने of वाला k. या क्या आने वाला है? K+1. यन आने वाला या क्या आने वाला? ये जो पावर थी 5, ये किसको रिलेट कर रही थी? ये कहाँ से ली थी मैंने? n+1. +1 किसने ऐड किया था? इस पावर में, N. इस हाँ, पावर yes, में sir. करेक्ट है। ये पावर कहाँ से आ रही है? अब ये क्या हो रहा है, यही ऐसा एग्जांपल है जिसमें दोनों नंबर सेम है। ठीक है, सो दैट इसलिए ज़्यादा दिक्कत, मतलब इसलिए आपका कंफ्यूजन हो रहा है। अगर मैं रिवर्स जाता हूँ, ये मैंने यहाँ से लिया है, u⁻⁴ कहाँ से लिया है? कहाँ से आया था ये u⁻⁴? इस रिलेशन से। तो ये जो पावर है ये किस पे डिपेंड है? t पे डिपेंड है। एम आई करेक्ट? सर सर इंटीग्रेशन मध्ये e⁻⁴ की वजह से t⁻⁴ की वजह से u⁻⁴ आ रहा है, ये तो आप एग्री करते हो ना? t⁻⁴ की वजह से u⁻⁴ आ रहा है। Yes. हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा मुझे? n n+1। प्लस N+1. हाँ, आप चाहो तो क्या करो, इसको 3 ले लो, t⁻³ ले लो एंड देन यू चेक दिस रिजल्ट। फिर से आप एक बार चेक करो तो आपको समझ में आएगा कि ये n+1 का है, नॉट फॉर k। हाँ, नाउ यू टेल मी नेक्स्ट। K⁻⁴. हाँ, अब ये, हाँ, ये क्या होगा? k⁻n+1। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन टेक हियर लाइक 3, 2, कोई भी एक नंबर ले लो, अलग अलग नंबर ले लो और फिर आप चाहो तो ये फॉर्मूला चेक करो। सो आई विल नॉट गिव यू प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट, ओके, इट इज जस्ट टू सेव योर टाइम। आप चाहो तो याद रखो, नहीं भी रखना तो आपके पास ऑप्शन है कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो दिस इज द वन मोर फॉर्मूला, गैमा ऑफ n+1 अपॉन, मतलब ये सिमिलर है। अब देखो ना, गैमा फंक्शन का फॉर्मूले में क्या आता है? ओनली गैमा ऑफ n+1 आता है, गैमा फंक्शन का फॉर्मूला। ओके, अगर आप यहाँ पे k लेते हो ना तो k⁻n+1 पावर भी नीचे ऐड करनी है। ओके, एंड नाउ लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 2, evaluate integration from 0 to 1 dx upon √ of x into log of 1 plus log of 1 upon x। बोलो इन solution। let me just simplify this result first, so this become 0 to 1, क्या लिखूँ यहाँ पे मैं? x⁻² and let me write, sorry माइनस ना, हाँ, and log of 1 upon x⁻⁻1/2 and this dx as it is। okay, अभी इसको माइनस से भी मैं एडजस्ट नहीं करने वाला हूँ। ओके, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करना है? सो व्हाट वी हैव टू पुट हियर? यस, क्या पुट करना होगा? log of 1 upon x is equal to, बोलो। Now since it contain log of 1 upon x and then you have to convert this into e⁻⁻t, तो मुझे क्या पुट करना होगा यहाँ पे? प्लस टी या माइनस टी? प्लस टी। प्लस टी। अगर ये x आता है तो माइनस टी। ओके, प्लस टी इसलिए पुट कर रहे हो आप बिकॉज दिस गिव्स मी 1 upon x is equal to e⁻t and this gives me x is equal to e⁻⁻t। ठीक है, and now you can calculate dx, so dx is equal to minus e⁻⁻t dt। you can also check your limits, x के लिमिट्स और t के लिमिट्स। x के लिमिट्स थे 0 to 1, you can check the limits of t when x is 0। कहीं पे भी पुट करो आप जहाँ पे आपको इजी लग रहा है। हाँ, x is 0, 1 upon 0 is infinity, log infinity क्या होता है?
log infinity. Infinity. So when I put x is equal to 0, 1 upon 0 is infinity, log infinity is infinity, that gives me t equal to infinity. When x is equal to 1, log 1 is 0. ठीक है? Now write down this given integral. So this given integral is equal to integration from infinity to 0 x raised to minus half. क्या लिखना होगा मुझे? e raised to, बोलो 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 क्या लिखना है यहाँ पे? t/2 हाँ t/2 t/2, तो ये साइन प्लस आने वाला है ना? ठीक है, ये सिंपल है। x कैलकुलेट किया ना आपने, तो x रेस टू -2, तो इसको -2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट +1/2. सो 1/2 इंटू टी, एंड नेक्स्ट क्या है, इसको तो मैंने t क्या पुट किया है, log 1 अपॉन x को t पुट किया है. कुछ तो रॉन्ग दे रहा है ना ये, क्या मिस्टेक हो गई समझ में नहीं आ रहा. माइनस है इधर, हाँ ना, माइनस आ रहा है मेरा तो. ओके लेट इट बी. देख लेते हैं आगे, इसको क्या करते हैं, इसको t रेस टू -12 कर लेते हैं, है ना. t पुट किया हमने, और dx की वैल्यू क्या है, शायद इससे वो जनरेट होगा. dx की वैल्यू क्या है, बोलो? माइनस e रेस टू dt. कैसे भी करो आपको आंसर सेम होगा. अगर आपने डायरेक्टली इसको माइनस लॉग एक्स में कन्वर्ट किया कैसे भी, अभी यहाँ पे करना डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ अंडर रूट, सो इसलिए मैंने उसको ही पुट किया. ओके लेट बी. नाउ बोलो माइनस साइन इसमें एडजस्ट करने वाला हो, सो इट बिकम 0 टू इन्फिनिटी. अभी आप बोलो e रेस टू दिस क्या मिलेगा, e रेस टू -12, जो आपको चाहिए था वो मिल गया, एंड t रेस टू -12 dt. ठीक है, अब इसका रिजल्ट मैंने आपको डायरेक्टली दिया है ना. मैं फिर से लिख लेता हूँ, तो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एमसीक्यूज में आपको यही यूज करना है. एक रिजल्ट मैंने आपको डायरेक्टली दिया है, e रेस टू -kt t रेस टू सम पावर dt इज इक्वल टू व्हाट, gamma ऑफ n+1 अपॉन k रेस टू n+1. नाउ यूज दिस रिजल्ट एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज द फाइनल आंसर? √2π. Okay, so gamma of n+1, n is -half plus 1 gives me 1/2 divided by k is what? -1/2. हाँ, माइनस नहीं लेना है k, क्योंकि माइनस टाइम्स k था, तो ये k आपको कंसिडर करना है. सो डोंट कंसिडर दिस माइनस साइन. सो k था मेरा 1/2, सो 1/2 रेस टू n+1, n+1 मतलब -half plus 1 इज 1/2. सो बेसिकली ये क्या है, √π अपॉन, ये भी क्या होगा 1/√2, है ना. 1/2 रेस टू 1/2, सो 1 रेस टू 1/2 अपॉन 2 रेस टू 1/2, 2 रेस टू 1/2 इज √2. सो दैट गिव्स मी √2π. 2√π. करेक्ट ना, √2π. ठीक है, ओके. लेट मी जस्ट ऐड सम साइंस. Continue. ठीक है, so there is one more example. Just let me give you this. आप मुझे डायरेक्टली सॉल्व करके बोलो व्हाट इज द फाइनल आंसर. आई विल गिव दिस टू यू. dx अपॉन माइनस लॉग एक्स करो और मुझे फाइनल आंसर बोलो. डू इट क्विकली. एवरीवन हैज टू सिट विद नोटबुक एंड पेन. मैथ्स का लेक्चर है ये, कोई थ्योरी लेक्चर नहीं चल रहा है. यस बोलो. एमसीक्यू जैसे सॉल्व करो तो इतना कुछ इन डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं जितना मैं लिख रहा हूँ. ओके, आई वांट फाइनल आंसर क्विकली. जंप करो और बोलो क्या मिलता है आपको यहाँ.
क्या करना होगा आपको यहाँ पे, बोलो क्या करना होगा, क्या किया है, व्हाट इज योर सब्स्टिट्यूशन, एनीवन टेल मी योर सब्स्टिट्यूशन, आपने क्या लिया है? log x equal to t. कैन वी टेक log x इक्वल टू t, कैन वी पुट, Root pi by 4. कैन वी पुट दिस, No sir. नो, क्या दिख रहा है Minus- ये माइनस minus साइन ना, log. अंडर रूट ऑफ माइनस, ये रियल का चल रहा है, देखो 0 to 1 है, रियल के ये सारे नंबर, सो रियल में तो ये Minus log. माइनस टी डिफाइन नहीं है, वी आर नॉट इन कॉम्प्लेक्स। Minus log x is equal to t. हाँ, ये करना होगा आपको। हाँ, ऐसे केसेस में देर आर टू ऑप्शन, ठीक है, एक अभी आपने करेक्ट बोला है, यू कैन डू दिस, यू कैन रिप्लेस दिस माइनस लॉग एक्स बाई टी और सिंपली लॉग एक्स इक्वल टू माइनस टी, और देयर इज वन मोर वे, क्या, माइनस लॉग एक्स को ही क्या लिखो, क्या लिखो, लॉग ऑफ 1 by 1 upon सिमिलर, x. दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, ये चेंज करो एंड देन यू कैन सॉल्व, बट इतना याद रखो अंडर रूट में कहीं पे भी माइनस साइन नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके, सो आई विल गो विद दिस एंड दैट गिव्स मी log x equal to minus t and that gives me x is equal to e raised to minus t, dx is equal to minus e raised to minus t dt, you can check your limits, मैं अभी little sorry डायरेक्ट करने वाला हूँ, 0 to 1 that gives me infinity to 0 मिलने वाला है ऐसे, so given integral is equal to बोलो क्या लिखना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0, ये क्या है, माइनस लॉग एक्स रेस टू 1 बाई 2 है, बट माइनस लॉग एक्स टी है, तो क्या आएगा यहाँ पे, टी रेस 1 upon t. टी रेस टू माइनस हाफ, ओके, एंड डी एक्स इज वॉट, माइनस ई रेस टू माइनस टी डी टी, सो फाइनली हियर यू विल गेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e raised to minus t, t raised to minus half dt, and what is this, gamma of t by 2, 3 by 2, t3, Minus 1 by 2 plus 1. so what is that, by 1 by 2 na? 1 by 2. So your final answer is root pi, ठीक है, ओके, सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट gamma function, इस मतलब जितने टाइप्स मैंने आपको दिए ना इसके बारे में आपको कुछ नहीं आने वाला, ओके, ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड विच इज बीटा फंक्शन। तो जब तक आपको गामा नहीं समझ में आता बीटा में भी दिक्कत आएगी, ठीक है, सो नाउ सेकंड इंटीग्रल इज बीटा फंक्शन, ठीक है, so let me just give you a definition, the beta function of m and n, okay, same restriction are there जो आपको मैंने उस टाइम पे दिए थे, अभी मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ, so let me just give you as it is, so the beta function of m and n is denoted by beta of m comma n, this is the notation beta, ठीक है, अल्फा बीटा गामा में से बीटा ऑफ m comma n, so it's a two variable integral and defined as, so beta m and n are the real values defined as, so what is that definition, beta of m comma n is equal to, so again it's a special integral, so integral from 0 to 1, so it's a bounded integral in between 0 and 1, okay, beta of m comma n is equal to integration 0 to m t raised to m minus 1 into 1 minus t raised to n minus 1, let me consider it as a ठीक है, t में रख लेते हैं dt, okay, this is your definition, so this beta function contain two terms, gamma function में कौन से दो terms थे, exponential and t raised to some power, तो बीटा फंक्शन में कौन से दो टर्म है, t raised to some power and 1 minus t raised to some power, रिमेंबर लाइक दिस, थ्योरेटिकली ये चीज़ें याद रखो तो कभी आप मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, गामा फंक्शन में एक्सपोनेंशियल था, t raised to some power का था, बीटा फंक्शन में t raised to some power का टर्म है, 1 minus t raised to some power का टर्म है, ओके, नाउ बट अगेन फॉर अ कैलकुलेशन पर्पस हम कभी बीटा से नहीं आने वाले, हम इंटीग्रेशन से, हमारा अप्रोच क्या होगा, फ्रॉम इंटीग्रल वी हैव टू राइट बीटा फंक्शन, दिस इज अवर अप्रोच,
ठीक है. सो रिमेंबर दिस रिवर्स डेफिनेशन. सो इन जनरल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 t raised to some power into 1 minus t raised to some power dt. Can you tell me what is the formula for this? बोलो, what is the formula for this? Beta of m, beta of सेम लॉजिक है, जो पावर है उसमें प्लस वन ऐड करना है ना. सो बीटा ऑफ m प्लस वन कॉमा n plus 1. दिस इज योर डेफिनेशन. ये हो गया आपका रिजल्ट. इसको आपको याद रखना है. अभी आपको ऑब्वियस क्वेश्चन आने वाला है कि सर ये बीटा फंक्शन कैलकुलेट कैसे होगा, जैसे हमने गामा कैलकुलेट करके दिया था, है ना. तो बीटा फंक्शन ये भी इसको भी कैलकुलेट करना होगा ना, जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है. सो हाउ यू एक्चुअली कैलकुलेट दिस. ये एक पहला क्वेश्चन होगा. सेकंड क्वेश्चन होगा, डज दिस m एंड n रियली मैटर, मतलब कैन वी राइट बीटा ऑफ m कॉमा n एज n कॉमा m, कैन वी चेंज दिस सीक्वेंस, है ना. मतलब ये t की पावर ही है यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ. कैन आई टेक वन, कैन आई कंसिडर पावर ऑफ 1 माइनस t. ये भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा. सो नाउ लेट अस आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस इन नेक्स्ट स्लाइड. फॉर दैट लेट मी सेव दिस फाइल. Yeah. Okay, so one by one we'll discuss all these properties. So now next part is what? Properties of beta function. So obviously जो first property आपको मैं दे रहा हूँ, which is what? This beta of m comma n is equal to beta of n comma n. So it will not matter if you change the role of m and n. Both are same. m comma n is equal to n comma n. Okay. मैं ज़्यादा केसेस में प्रूफ नहीं देने वाला हूँ. रीज़न आपको पता है, वी डोंट हैव दैट मच टाइम, बट लेट मी गिव यू फॉर दिस. जो इंपॉर्टेंट है उसमें हम ज़्यादा फोकस कर लेते हैं. लेट अस स्टार्ट विद LHS, है ना. सो बीटा ऑफ m comma n, what is the definition? Its definition is 0 to 1 t raised to m minus 1 1 minus t raised to n minus 1. अभी आप ही बोलो, मुझे इस इंटीग्रल को ऐसे कन्वर्ट करना है सो दैट एट द एंड आई विल गेट, क्या चाहिए मुझे एंड में? आई हैव टू चेंज दिस इंटीग्रल सो दैट एट द एंड आई विल गेट, बोलो, n कॉमा n आने के लिए मुझे इंटीग्रल को कैसे करना होगा चेंज? t की पावर क्या चाहिए मुझे टू राइट इट इज इक्वल टू n कॉमा n. t की पावर क्या चाहिए? n minus 1, है ना. बस इंटरचेंज, एंड दिस आई वांट m minus 1. अभी आप बोलो कैसे करना है. लेट मी गिव यू ओनली वन सब्स्टिट्यूशन से. यस कुछ कोई तो बोल रहा था. हाउ यू डू दैट? upper limit plus lower limit minus x. नहीं, आपको करना क्या है? पावर को चेंज करना है. मतलब t के 1 minus 1 minus t के सॉरी t की पावर m minus 1 थी तो n minus 1 आनी चाहिए, और ये 1 minus t n minus 1 की जगह पे 1 minus t raised to m minus 1 आना चाहिए. तो क्या होगा आपका सब्स्टिट्यूशन? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने आपको. क्या होगा आपका सब्स्टिट्यूशन? और गिवन है, हाँ, t इज इक्वल टू 1 minus 1 minus ठीक है, t बोलो x बोलो, t इज इक्वल टू 1 minus x. वेरी गुड. अरे कितना सिंपल था. ये t रेस टू m minus 1, ये टर्म किस में चेंज हो रहा है? 1 minus t में चेंज हो रहा है. t रेस टू m minus 1 1 minus t में चेंज हो रहा है. तो क्या करना होगा मुझे? t की जगह पे 1 minus x रखना होगा. हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है. सो लेट मी शो यू दिस. अभी मैं इरेज कर लेता हूँ. अभी आप t इक्वल टू 1 minus t लिख नहीं सकते हो, मैथमेटिकली इट इज नॉट करेक्ट, बट लॉजिक वही है. t इक्वल टू 1 minus t पुट करने वाला हूँ, बट वी कैनॉट राइट t इक्वल टू 1 minus t, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी t है, राइट साइड में भी t है. सो जस्ट टू डिफरेंशिएट दैट, this t is different, this t is different, so let me give you this as 1 minus x. And now do the similar process. Calculate dt. dt is minus dx. Check your limits. t के given limits थे 0 to 1. Tell me your new limits. x के limits क्या आ जाएंगे? बोलो, x के limits. हाँ? When I put x equal to 0, very good, 1, and when I put x is equal to 1, sorry, t ना, तो यहाँ से मुझे आपको ये थोड़ा बहुत चेंज करना होगा. जब आप t इक्वल टू 0 पुट करते हो, x इक्वल टू 1 मिलेगा. t इक्वल टू 1 पुट करते हो तो क्या मिलेगा? 0. ओके
ओके, ठीक है. एंड नाउ लेट अस राइट दिस. सो is equal to integration from 1 to 0. Okay, t raised to 1 minus m can be written as 1 minus x raised to m minus 1. and ये क्या होगा फिर 1 minus t की वैल्यू क्या आएगी, ये x यहाँ पे शिफ्ट करो, 1 minus t की वैल्यू क्या आएगी, x आएगी. ठीक है, आप यहाँ से कैलकुलेट करो n minus 1 and minus dx. Minus dx you can adjust here, and this can be written as 0 to 1, 1 minus x raised to m minus 1, x raised to n minus 1 dx. आपकी डेफिनेशन क्या थी, पहले x की पावर लिखो, फिर 1 minus t की पावर लिखो. सो दिस गिव्स मी, क्या आएगा बोलो, x की पावर n minus 1 है. जब आप बीटा में कन्वर्ट करते हो तो आपको क्या लिखना है, +1 ऐड करते हो ना. यहाँ पे यम माइनस 1 है तो यहाँ पे यम आ जाता है. हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, n. यहाँ पे m माइनस 1 है तो यहाँ पे लिखना होगा m. So दी प्रूफ ऑफ दिस फर्स्ट रीजन. ठीक है, ये कहीं पे आपको एग्जाम में नहीं आने वाला. दिस इज द स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, यू हैव टू रिमेंबर डायरेक्टली. अब डायरेक्टली याद रखो, कहीं पे इसका और कुछ यूज नहीं है. ओके, एंड ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ लेट मी गिव यू द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिससे अभी आप बीटा फंक्शन कैलकुलेट करने वाले हो. ठीक है, सो नाउ सेकंड रिजल्ट इज व्हाट, दिस बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू द गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n. अगेन इसका प्रूफ भी आप बाद में देखोगे. आई थिंक ये भी यूनिट 6 में है. एंड अगेन इट इज़ नॉट ट्रिवियल, कि इतना भी ट्रिवियल नहीं है जितना जैसे हमने अभी ये किया था. सो आई एम गोइंग टू स्किप दिस प्रूफ. ओके, इफ़ यू वांट यू कैन रेफर, ये सारा कंटेंट आपको कहीं पे भी मिल जाएगा. ओके, ठीक है, पर जो लेक्चर में पॉसिबल है वो चीज़ें मैं ले रहा हूँ. नाउ गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ n, दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन. ये है आपको सिलेबस में आगे. सो फ्रॉम दैट ऑल्सो यू विल गेट द प्रूफ ऑफ दिस. So beta of m comma n is equal to gamma of m into gamma of n upon gamma of m plus n. अभी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट बीटा ऑफ 2 कॉमा 3. यस, कैसे कैलकुलेट करना होगा, दिस इज इक्वल टू गामा ऑफ 2 गामा ऑफ 3 अपॉन गामा ऑफ देयर एडिशन. 2 plus 3 is 5. So your answer is gamma of 2 is 1 factorial, gamma of 3 is 2 factorial divided by gamma of 4 is 4 factorial. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस gamma of 1 by 2 comma 3 by 2, कैसे कैलकुलेट करना होगा, सेम लॉजिक, gamma of 1 by 2 gamma of 3 by 2 gamma of their addition which is what 2. 3 plus 4 by 2 is 2. So that gives me root pi. Gamma of 3 by 2 is 1 by 2 root pi and divided by gamma of 2 is 1 factorial. ठीक है, क्लियर हो रहा है ये कैसे कैलकुलेट करना है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन हाउ टू कैलकुलेट दिस बीटा फंक्शन? Yes, sir. Okay, so it is similar to gamma function, so I will not give you an examples on this part. हम वैसे भी क्वेश्चंस से ये हो जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ लेट अस डिस्कस द एग्जांपल ऑन दिस फर्स्ट टाइप. तो अभी तक मैंने फर्स्ट ही इंट्रोड्यूस किया है, डेफिनेशन इंट्रोड्यूस किए और उस पर डायरेक्टली एग्जाम्पल देख लेते हैं. दैट इज योर टाइप 1. टाइप 2 में कल के लेक्चर में इंट्रोड्यूस करता हूँ, टाइप 3 नेक्स्ट, ऐसे हम जाते हैं. नाउ टाइप 1, एग्जाम्पल्स ऑन, ये पीडीएफ में आपसे शेयर कर देता हूँ. एग्जाम्पल्स ऑन, डेफिनेशन ही लेने हैं. एग्जाम्पल्स ऑन डेफिनेशन, दैट इज 0 to 1. अब ये लिमिट्स सब में सेम नहीं रहेंगे, तो क्या करूँ मैं, आई विल नॉट स्पेसिफाई दिस लिमिट्स. ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो मुझे देना है. तो यहाँ पे क्या होता है जनरली, सम कांस्टेंट माइनस x रेस टू सम नंबर रेस टू सम नंबर dx. इस टाइप का अगर टर्म आपको दिखाई देता है ना, वॉट एवर लिमिट्स आर देयर, जनरली दिस लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1. ठीक है, बट आई विल नॉट स्पेसिफाई दोज लिमिट्स, कुछ एग्जाम्पल में चेंज होगा. बट ऐसे टाइप के अगर एग्जाम्पल आ जाते हैं, सम स्टार टू स्टार,
ठीक है. सो यू हैव टू सॉल्व दैट एग्जाम्पल यूजिंग, आई हैव टू चेंज दिस टाइटल ऑल्सो, यू हैव टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल यूजिंग बीटा फंक्शन. ठीक है, तो उस केस में आपको बीटा फंक्शन से ही जाना होगा. फिर से याद रखो, ये कोई, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया, ये कहीं पे भी बुक में आपको नहीं मिलेगा. ये दिस इज जस्ट द ऑब्जर्वेशन कि क्या सिमिलरिटी दिखाई दे रही है. ओके, गामा बीटा फंक्शन के एग्जांपल्स में. तो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल रेस टू सम पावर होल ब्रैकेट रेस टू सम पावर, तो ये पावर कभी कभी 1 भी हो सकती है. ओके, सो मैंने पावर भी स्पेसिफाई नहीं किया, बट लुक लाइक सम दैट दोस इंटीग्रेशन इज ऑफ दिस टाइप. तो ऐसे केसेस में आपको करना क्या है, ऐसे केसेस में आपको करना क्या है, कन्वर्ट, I will not directly consider your definition, examples on this, and in this case convert given integral, क्योंकि इसमें अलग अलग फॉर्म है, तो अभी यहाँ पे मुझे आपको स्पेसिफाई करके देना होगा कि इस केस में मुझे कौन से बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करना. देयर आर 3 डेफिनेशन फॉर बीटा फंक्शन. ओके, दैट यू विल कम टू नो लेटर ऑन, नेक्स्ट लेक्चर में ये होगा. देयर आर 3 डेफिनेशन फॉर बीटा फंक्शन. सो इन दिस केस कन्वर्ट गिवन इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ, कन्वर्ट गिवन इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ 0 to 1, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है. दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन और मेन डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन. टी रेस टू सम पावर 1 माइनस टी रेस टू सम पावर, आपको कैसे भी करके इसमें कन्वर्ट करना होगा, सो दैट यू विल गेट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन. ठीक है, लेट मी राइट इट सम a to b, I will not specify this, a minus x raised to some power raised to some power dx. Let me erase this. ओके, तो ऐसे केसेस में आपको इस डेफिनेशन में ही कन्वर्ट करके उस इंटीग्रल को सॉल्व करना है. अभी केस में आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ. सो आफ्टर दैट विल स्टॉप, वी विल टेक ओनली वन एग्जांपल. सो एग्जांपल क्वेश्चन 1, इवैल्यूएट और मुझे अभी आपसे हिंट चाहिए कि क्या इसमें हो सकता है. 0 to 2 x 8 minus x cube raised to 1/3 dx. ठीक है, नाउ सॉल्यूशन. अभी आप ही बोलो मुझे कि कौन से, मतलब why we have to solve using a beta function. Tell me the reason. Why we have to solve using a beta function. मैंने आपको क्या बोला था कि ये एक फॉर्म है बीटा फंक्शन का. अगर इस टाइप में एग्जांपल आता तो आपको पता कि किस में कन्वर्ट करना है. कांस्टेंट माइनस एक्स रेज टू सम पावर, अब ये चेंज भी होगी, dx. ऐसे एग्जांपल को आपको कन्वर्ट करना है. इंटीग्रेशन 0 to 1 टी रेज टू सम पावर 1 माइनस टी रेज टू सम पावर dt. अभी बोलो. बिकॉज ऑफ विच टर्म हियर यू हैव टू यूज बीटा फंक्शन. ये टर्म किससे मैच कर रहा है, ये टर्म किससे मैच कर रहा है, कांस्टेंट मतलब 8 है ना. 8 माइनस एक्स रेस टू सम पावर रेस टू सम पावर, ये पावर 1 भी आ सकती है, इट इज नॉट कंपल्सरी. हाँ, ये m भी 1 हो सकता है. सो बिकॉज ऑफ दिस टर्म यू हैव टू यूज दिस. दिस इज द एग्जांपल ऑन टाइप 1. ओके, अभी आप मुझे ये बोलो, मैंने आपको हिंट दी है, मुझे इस टर्म को, ये a माइनस एक्स का जो टर्म है, मुझे उस टर्म को किस में कन्वर्ट करना है. I have to convert this term while converting this integral in terms of beta. Beta मतलब इसमें कन्वर्ट करते समय मुझे 8 माइनस एक्स क्यूब, इस टर्म को मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा. 2 ही टर्म है ना, एक टी का टर्म है, एक 1 माइनस टी का टर्म है. तो किसी एक टर्म को मुझे टी में कन्वर्ट करना होगा, किसी एक टर्म को मुझे 1 माइनस टी में कन्वर्ट करना होगा. तो यहाँ पे जो 8 माइनस एक्स क्यूब का टर्म है, ये कौन से टर्म में कन्वर्ट हो सकता है. व्हाट इज मतलब व्हाट यू फील, ये टी में कन्वर्ट हो गया, 1 माइनस टी में कन्वर्ट होगा. व्हाट यू फील, 1 माइनस टी में कन्वर्ट होगा. तो यहाँ पे जैसे गामा फंक्शन में आपका फोकस था एक्सपोनेंशियल पे ना, आप ज्यादातर यही एडजस्ट कर रहे थे, ई रेस टू माइनस टी का टर्म. टी रेस टू एम का टर्म है ना, आप एडजस्ट क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है. ओके, वी आर नॉट दैट मच वरी अबाउट दिस टी रेस टू एम टर्म, है ना. सेम अगर आप गामा बीटा फंक्शन में आते हो ना, बीटा फंक्शन में आपको ज़्यादा फोकस करना है 1 माइनस टी टर्म के ऊपर.
या टी रेस टू एम का टर्म वैसे भी एडजस्ट हो जाता है. सो विल नॉट वरी अबाउट दिस टर्म, इस पर कुछ हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है. वी हैव टू एडजस्ट 1 माइनस टी टर्म. जैसे गामा में ई रेस टू माइनस टी का टर्म एडजस्ट करते हो, वैसे यहाँ पे 1 माइनस टी का टर्म एडजस्ट करना है. अभी आप अच्छे से सोचो. नाउ टेल मी अ सब्स्टिट्यूशन, टेल मी अ सब्स्टिट्यूशन विच कन्वर्ट दिस टर्म डायरेक्टली इनटू 1 माइनस टी. ये जो भी आंसर देगा ना, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक. टेल मी अ सब्स्टिट्यूशन विच कन्वर्ट दिस टर्म 8 माइनस एक्स क्यूब डायरेक्टली इनटू 1 माइनस टी. by 2 is t. हाँ, X by 2 is t. X by 2 is equal to t. x by 2 इक्वल टू x by 2 इक्वल टू t. एक तो मुझे x बोलो या कोई और, मतलब कैसे कन्वर्ट होगा अप्रोच बोलो. आई डोंट वांट द आंसर, कैसे होगा वो भी आप बोलते हो तो भी चलेगा. सर 8 कॉमन लेके x by 2 को t लेके. हाँ, अभी आप शायद ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ से x कैलकुलेट करें. नो, ये कन्वर्ट करने का पार्ट में बोल रहा हूँ. दिस टू आर नॉट इक्वल, दिस टू आर नॉट इक्वल, दिस टू आर नॉट इक्वल. ये कन्वर्ट होना चाहिए. अभी आप चलो, ओके, मैं एक और हिंट देता हूँ. जब ये टर्म आपका 1 माइनस टी में कन्वर्ट होगा, 8 की जगह पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. यही तो थॉट है ना, 8 की जगह पे 1 आना चाहिए. Yes. 8 की जगह पे 1 आने के लिए मुझे नेक्स्ट टर्म में 8 लेना होगा. क्लियर है? सो दैट आई कैन टेक 8 कॉमन. लॉजिक अगर मैं इस नेक्स्ट टर्म में एक्स क्यूब अगर मैं लिख लेता हूँ ना, तो वो बाद में एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर एक्स क्यूब के टर्म में मैं 8 इंटू कुछ लिख लेता हूँ, कैन आई टेक एक्स क्यूब equal to 8t, whether this will solve my problem, whether this will solve my problem. इससे क्या हो जाएगा? 8 माइनस एक्स क्यूब मैं कैसे लिखने वाला हूँ? 8 माइनस 8t. ओके, एंड इफ आई टेक 8 कॉमन, मुझे मिल गया 1 माइनस टी. मुझे कैसे भी करके 1 माइनस टी को पिक्चर में लाना है. मल्टीप्लाई बाय 8, कांस्टेंट डजंट मैटर. कांस्टेंट से कुछ ज्यादा इफेक्ट होगा नहीं आपके वैल्यूज पे. ठीक है, सो कैन आई गो विद दिस? x cube equal to Yes, sir. okay, now you tell me in general a minus x raised to n इस केस में सब्स्टिट्यूशन क्या होगा to convert this term into 1 minus t? tell me in general क्या होगा सब्स्टिट्यूशन? a in bracket 1 minus t. सब्स्टिट्यूशन बोलो. x raised to m is equal to फिर इसके बाद x कैलकुलेट करना, दैट इज नॉट अ बिग डील ना. सो इट इज इक्वल टू a रेज टू 1 अपॉन m t रेज टू 1 अपॉन m. तो ये होता है मेन पार्ट. सो हमेशा याद रखो, सेकंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू t. x रेज टू m इज इक्वल टू a इनटू t. दिस इज योर इन जनरल सब्स्टिट्यूशन सारे एग्जांपल में. ठीक है. सो कितना टाइम है? लेट मी जस्ट चेक दैट. इज दिस, ये जो मैंने राइट सेक्शन में लिखा ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. और ये मैं आपको एज अ पीडीएफ देने वाला हूँ, फॉर्मूला शीट ही देने वाला हूँ. नोट्स यू कैन डायरेक्टली रेफर फ्रॉम दिस. ठीक है. ओके, आई थिंक हियर विल स्टॉप टुडे. आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस बिकॉज ये होगा नहीं, थोड़ा टाइम जाने वाला है इस एग्जाम्पल में. हियर विल स्टॉप एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस स्लाइड. इसी स्लाइड से हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं.